Let us continue today's meet for extra lecture by Shende Madam. On today, that is 5th of July, we all are here to continue with physics. Last time, while discussing, we were discussing about chapter number 1. We were discussing about theorems of moment of inertia. These theorems are useful to find moment of inertia about any axis under certain condition. So, in the book on page number 16, they have given solved numeric, that is 1.7. Open page number 16 from the book, page number 16, example number 1.7. वो 1.7 के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. वो दे हैव गिवन अ फ्लाई व्हील यानी कि क्या, यूनिफॉर्म डिस्क. फ्लाई व्हील इज नथिंग बट यूनिफॉर्म डिस्क. व्हाट दे हैव कंसिडर्ड इन सेकंड केस, देखो सेकंड पार्ट है ना न्यूमरिक का, वो बोला है उन लोगों ने कैलकुलेट, लास्ट सेंटेंस देखो न्यूमरिक का, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस when it rotates about the tangent in its plane. शुरू में क्या होता है, they assume this disk rotating about symmetrical transverse axis. Last time we derived expression for this moment of inertia and we found it as half mr square. तो उन लोगों ने क्या किया है, अभी ये उसका प्लेन है विच इज पैरेलल टू अर्थ हॉरिजॉन. ये प्लेन में उन लोगों ने टेंजेंशियल एक्सिस लिया है. टेंजेंट मींस व्हाट, टू द डिस्क इट शुड टच एट वन सिंगल पॉइंट. सो इफ दिस इज द डायमीटर, this is the other diameter, these two diameters will be perpendicular to each other. So using principle of perpendicular axis, you can find value of ix as well as iy. Ix plus iy is equal to iz. Due to symmetry, ix will be same as iy. So ix will be same as iy. Therefore iz, principle of perpendicular axis, which is ix plus iy, will be 2ix or 2iy will be equal to 2id. मैं id यूज करती हूँ यानी कि along any diameter. तो मैंने सिंबल यूज किया id. So what will be value of id? iz upon 2, that will be 1/2 into half mr square. ये आ जाएगा. So 1/4 mr square. ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा. So along any diameter in the plane of disk, not perpendicular to its plane, value of moment of inertia means यानी कि ये डायमीटर है और ये ऐसा रोल हो रहा है, ये डायमीटर है और ऐसी डिस्क रोल हो रही है, घुमा रही है, ऐसे एज्यूम करते हैं. दिस इज अलोंग डायमीटर मीन्स व्हाट, इफ आई सेलेक्ट दिस डायमीटर, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड अबाउट द टेंजेंट. तो उसको पैरेलल मैं टेंजेंट एक्सिस लेती हूँ. इट इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ डिस्क. सो व्हाट दे वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ IT. जो सेकंड केस दी है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन. तो ये सेकंड स्टेज, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ I अबाउट टेंजेंट. तो जो जहां आप लोग टेंजेंट लेना चाहते हैं उसका पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी रेडियस ऑफ uniform disk. So what is second stage? You have to apply principle of parallel axis. So parallel axis principle से क्या हो जाएगा, about tangent will be addition of moment of inertia about its parallel axis. Tangent को parallel axis choose करना है passing through center of mass. So this will be Iy plus
product of mass of this disk into square of distance between two parallel axes h square. H you can select as radius r square. So this will be 1 by 4 mr square plus mr square. So 1 by 4 plus 1 will be 5 by 4 mr square. So about any tangential axis in the plane of circular disk, moment of inertia will be 5 by 4 mr square. ये लोगों ने देखो सॉल्व करके दिया है, उसका सॉल्यूशन दिया है देखो सेकंड पार्ट पे. सो आई टी will be then 5 by 4 mr square. They can also ask you to find radius of gyration about this tangential axis. So what is the relation between radius of gyration and moment of inertia? Square root I by m. तो tangential axis का जो moment of inertia है उसको m से डिवाइड करेंगे तो you will get radius of gyration about the same axis. ऐसा सॉल्व करके हम लोग स्क्वायर रूट 5 बाय 4 इंटू m कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर का क्या रहेगा r. सो बाय नाइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस you can find radius of gyration of the same body about the same axis about which you are knowing moment of inertia. So this is its application. जो हम लोगों ने theoretical सीखे हैं ना उसका ये एप्लीकेशन हो गया है. सो बी केयरफुल. यू कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम to solve such small bit questions. Such questions arise for 2 marks. जनरली सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है सिमेट्रिक एक्सिस है और बॉडी को परपेंडिकुलर है उसका हम लोग बाय इंटीग्रेशन मेथड पहले केस में बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और अगर सेम बॉडी का और कुछ एक्सिस के बाजू में चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई आइदर प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो दिस इज इट्स अप्लाइड पार्ट. सो सॉल्व सच न्यूमेरिक्स आल्सो व्हिच आर बेस्ड ऑन theorems of moment of inertia. We'll proceed further to conclude this chapter. Last bit of the chapter left is rolling motion. 1.11 पेज नंबर 19 ये बच गया है वो हम लोग आज फिनिश करते हैं पॉइंट so that the entire chapter will be over. Rolling motion. Up till now what we studied, pure circular motion of the object, pure translational motion of the object, pure rotational motion means what? That object is performing only one type of motion at a time. वो अगर ट्रांसलेट होता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं वो रोटेट नहीं हो रहा है. रोटेशनल मोशन जब भी हमने सीखी तो अब हम लोगों ने एज्यूम क्या किया है, इट इज नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड, वो आगे आगे नहीं जाता है. लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकल केसेस में वी कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर दिस वन सिंगल ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स at a time more than one motion. For example, rolling motion. Rolling motion में क्या होता है, बॉडी रोल भी होती है about its axis and translate भी होती है. अगर बॉल है, बॉल आपने फ्लोर पे फेंक दिया तो खुद के एक्सिस के स्पिन पर होगा और आगे आगे भी जाएगा. So rolling motion is the combination of two motions, linear motion as well as rotational motion. ऐसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब भी हम लोगों को more than one मिलता है मोशन. तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, when its theory is to be studied you have to consider resultant energy by rolling body made up of two energies due to its linear motion plus due to its rotational motion. हाँ, तो ये हम लोगों को सीखना है. सो व्हाट वी विल प्रोसीड फर्दर. रोलिंग मोशन का उन लोगों ने एग्जांपल दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी विल बी काइनेटिक एनर्जी possessed by body ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशन. वो आगे आगे भी जा रही है और इधर रोल भी हो रही है अबाउट इट्स एक्सिस. इट इज रोलिंग ऑल्सो, स्पिनिंग ऑल्सो
So total kinetic energy of rolling body, total roll, will be then kinetic energy due to its translational motion plus kinetic energy due to its rotational motion, because while translating it is spinning, it is rotating about its own axis of symmetry. So ये अभी rotational की भी हम लोगों को लेनी चाहिए. So translational क्या है? हाफ mv square. Linear velocity ले लेते हैं. The entire body is supposed to be replaced by a single mass, where motion of body is same as motion of that particle, and that particle has mass equal to the mass of entire body. उसको हम लोग center of mass बोलते हैं. तो center of mass की linear speed हम लोग choose करते हैं. Body be replaced by a point heavy mass, that is center of mass. और rotational में क्या आएगी? half I omega square, ये आ जाएगी. So total kinetic energy of rolling motion will be half mv square plus half I omega square. Look in the book. Book में देखो आप लोग. हम लोग आगे जाते हैं. I we can rewrite in terms of radius of gyration. So this term क्या हो जाएगी? half mv square plus half k square, where k is radius of gyration, and omega try to write in terms of linear velocity, so that will be v upon r. square है तो हम लोग ये भी क्या करेंगे? square लिखेंगे. So half m v square, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे. So total kinetic energy of rolling body है तो कितना आएगा? half m v square, ये टर्म 1 प्लस इधर क्या लेफ्ट हुआ है? k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. So total kinetic energy of rolling body will be then addition of kinetic energy of linear motion and kinetic energy possessed by body, acquired by body due to its rotational motion. So ऐसे भी हो सकता है. Body at a time may have two motions simultaneously. तो total dB निकालेंगे तभी ये फॉर्मूला यूज करना है. For example, if I have inclined plane means what? One polished surface kept inclined at certain angle with respect to earth horizon, उसको भी inclined plane बोलते हैं. ठराविक एंगल से वो इंक्लाइन किया जाता है. सपोज एट हाइट एज आई हैव केप्ट वन बॉल. एक बॉल है, इनिशियली एट रेस्ट है, एट हाइट एज फ्रॉम अर्थ हॉरिजॉन एट पोजीशन पी ऑन द इंक्लाइन प्लेन. सो इट विल possess पोटेंशियल एनर्जी. कितनी आ जाएगी? if m is its mass, then potential energy possessed by it will be mgh. इनिशियली एट रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी उसको है ही नहीं. Now what I will do? I will make this ball free so that it will roll down. रोलिंग हो रहा है, ट्रांसलेट भी होएगा और खुद के एक्सिस के ऊपर स्पिन भी हो जाएगा. स्लाइडिंग नहीं, स्लाइड नहीं होनी चाहिए, रोल होनी चाहिए. स्लाइड यानी कि क्या होता है? विदाउट स्पिनिंग इट जस्ट मूव्स ट्रांसलेशनल, इट जस्ट मूव्स लिनियरली. वो नहीं होना चाहिए, रोलिंग होना चाहिए. तो स्पिन भी हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा. So gradually its velocity will go on increasing. Initially अभी इसकी velocity क्या है? 0 है, कुछ हो नहीं रहा है. तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. When it reaches to the ground, let v be its final velocity. ये final velocity है, ऐसे हम लोग assume करते हैं. The application of this rolling motion, they have considered the motion of body on inclined plane. I am continuing on page number 20. 20 पे जाओ. 20 पे हम लोग क्या मिलेगा? देखो क्या क्या होता है. ये एप्लीकेशन लिया है. सो फाइनल एनर्जी क्या है? ये डिस्क है ना, पहले बोला था ना मैंने बॉल का, वो ये रहेगा. सो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय क्या रहेगा? उसकी उतने पास अभी एनर्जी है. सो बट व्हाट हैपेंस? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh will be converted into this kinetic energy. So we will equate this with mgh.
ये एप्लीकेशन है यार, मैं एप्लीकेशन बोल रही हूँ. सो व्हाट हैपेंस, दिस 2 विल कैंसल, वो m m कैंसल हो जाएगा, 2 इधर आएगा. सो 2gh अपॉन दिस एंटायर टर्म 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर विल बी लेफ्ट v स्क्वायर. ये 2 इधर आ गया, m कैंसल हुआ और ये ब्रैकेट है a इंटू बी, तो b मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो v विल भी कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. दिस विल बी द वेलोसिटी when that particular ball reaches the bottom. इतनी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जब वो नीचे आ जाएगा, बॉटम तक रीच हो जाएगा. वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज फैक्टर h इज चेंजिंग. हाइट शुरू में h है, जब भी वो नीचे आता है तो इधर h1 हो गई, इधर h2 हो गई, इधर तो हाइट h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So depending on height, its velocity at different positions has different values. So velocity in magnitude changing, definitely what will produce, acceleration will get produced. You can find linear acceleration when ball runs down in rolling motion with the help of kinematical equations of linear motion. क्या है, s is equal to what you all know, v square minus u square. Final velocity minus initial velocity is always equal to 2as. So you can find s. What is displacement of the ball? ये h है, ये थीटा है. सपोज इंक्लाइन प्लेन की लेंथ s है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s into थीटा, दैट इज साइन. अगर आप लोगों ने साइन रेशो लिया तो गाइस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा. सो s विल बी देन h अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल बी देन वैल्यू ऑफ s. ये वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं. v की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है ना, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट साइन अपने आप चला जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी है, 0 है. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड, देखो अभी क्या होता है, 2 into a into s h अपॉन साइन थीटा will be square root 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. उसका स्क्वायर रूट भी है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा. सो यूजिंग दिस टू यू कैन फाइंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी आल्सो. वेलोसिटी भी एट इंस्टेंट एट गिवन पोजीशन निकाल सकते हो. सिमिलरली एट गिवन पोजीशन h मालूम है तो ये वो पोजीशन जब भी पार्टिकल है तभी उसका एक्सीलरेशन कितना आएगा वो भी हम लोगों को समझ में आ जाता है. So this is the application of this rolling motion. Based on such formulae, the numerics can also be set up. अभी क्या होता है, on one more characteristics, rolling में क्या होता है, it acquires total rolling energy, which is summation of translational energy plus kinetical energy. जो रोलिंग की रोटेशनल एनर्जी है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है, और वेलोसिटी नीचे स्ट्रेट भी आ रहा है तो उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है. सो यू कैन कंपेयर दैट 3 एनर्जीज, टोटल एनर्जी, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये हम लोग कंपेयर करेंगे. वी नो टोटल एनर्जी इज एडिशन ऑफ दिस टू, ये तो डेफिनेटली मालूम है, बट इन विच प्रपोर्शन दिस टू अपीयर. सो फॉर रोलिंग बॉडी ऑलवेज रिमेंबर द प्रपोर्शन. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 40%, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी is 60% out of total energy which is 100%. 100% अगर टोटल एनर्जी है तो 60% उसका कंटेंट रोटेशनल टाइप होगा और 40% उसका कंटेंट
ट्रांसलेशनल टाइप होगा। 60% काइनेटिक, मैंने बोला ना, वो हम लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ 60%। ट्रांसलेशनल ज्यादा होती है और रोटेशनल कितनी होती है उसकी 40% हो जाती है। एंड रेशियो बिटवीन दिस टू, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी to total kinetic energy possessed by rotational body is as 3:2:5. 60 by 100, 40 by 100 and 100 by 100. If you consider it 5, will be then 3:2:5. You have to remember all these cases. They have given nicely in the book. बुक पढ़ा ना तो आप लोग ये सब समझ सकते हो। कंपेयर करो ना, कंपेयर किया तो अपने आप आ जाएगा। सो 1:2 by r square as to 1/1 plus k square by r square। ये जो लास्ट वाला है ना रोलिंग का, वो तो रेशो है ना, तो वो 100% इसमें से ट्रांसलेशनल से लिया जाता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ट्रांसलेशनल to rotational to total energy of rolling body are always in the ratio 3:2:5। total energy possessed by rolling body उसका 60% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है और 40% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सो विच कंप्लीट्स द फर्स्ट चैप्टर dynamics theory part, cause behind the motion, circular motion, and the second type we considered rotational motion. We solve few numerics from exercise खोलो, उसमें से कुछ numerics थोड़े solve कर लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 25 ओपन करो, ओपन पेज नंबर 25। खोला आप लोगों ने? मैं चालू करती हूँ। न्यूमरिक नंबर 19 थोड़ा सॉल्व करते हैं, बाकी सब मैंने सॉल्व करके रखे हैं। आई विल गिव यू दैट नोट्स, यू हैव टू राइट डाउन बाय अंडरस्टैंडिंग इन द नोटबुक, कंप्लीट द नोटबुक। ये जो जितने सारे न्यूमरिक्स है ना, द न्यूमरिक्स आर, हाउ मेनी न्यूमरिक्स आर देयर इन द चैप्टर? देखो एक्सरसाइज में नंबर 12 से न्यूमरिक चालू हो जाते हैं। पहले जो क्वेश्चन है वो थियरी क्वेश्चन है और 12 नंबर के आगे सब न्यूमरिक्स है, फ्रॉम 12 to 22। एवरी एंड ईच न्यूमरिक का सॉल्यूशन ठीक से सॉल्व किया हुए नोट्स मैं आपको दे दूंगी। खाली मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ कि आप जब भी वो सॉल्व करेंगे आप लोगों को वो समझ आएगा कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। अंडरस्टूड?